Good morning, all of you. Welcome back to Ansarkari. So, starting with the news analysis for 26th of November. यहाँ पे इस पेज पे again कल भी हमने बात करी थी one the schemes from the state of Karnataka because there are going to be state assembly elections. So, Gruha Lakshmi is the scheme. Rupees 2,000 per month to the female head of the family is provided. So, as to again increase the decision making powers of the women and raise their confidence, their willing power, and to increase their participation in the economy. So this is one of the financial benefits that is provided. So it has been deposited through direct benefit transfer mechanism in their bank accounts. So this also promotes financial inclusion at the same time. And this is a part of the revenue expenditure. So, getting updates about the Uttarkashi tunnel rescue, we see rescue is dangerous as it may take a long time, according to the National Disaster Management Authority, because the machine that we were using that is basically no longer functional because of again the challenges of the blockages that we are seeing. So, horizontal drilling was also going on. So, this is not proceeded in 48 hours, and now we'll be relying upon the basically vertical drilling or uh, trying to reach from the upside. So with the auger machine stuck, so this was a machine that we were using, manual drilling mull for last 10 meters, plasma cutter being brought in from Hyderabad to cut out the stuck auger. So basically some like iron rods were found to be present in between जिसकी वजह से obstruction आई है. So vertical drilling भी risky है. So efforts to drill vertically through 86 meters of the mountain have also been stalled as the road to the drilling site is too narrow for the movement of the gigantic vertical drilling machine, according to BRO. So right now it is working to widen the road, but अभी ऐसा कुछ हमें सामने नजर नहीं आ रहा है कुछ permanent solution जो हमारे पास हो. So plasma cutter is being relied upon right now. So Rajasthan में state assembly election 71.64% turnout in peaceful polling. So voter turnout is recorded this much. So we are having state assembly elections in different states. So we can talk about the importance, or when we're talking about the electoral reforms about simultaneous elections. So here we can say कि simultaneous elections, one nation, one election is the idea behind that कि एक particular time पे जनरल इलेक्शंस भी और स्टेट इलेक्शंस दोनों साथ में हो जाए so that we can focus more upon the developmental work. And this is going to be a challenge because post independence India में simultaneous elections was the system that we were relying upon. हम उसी को यूज कर रहे थे, बट जो चैलेंज है एंड इस सिस्टम में भी अगर हम इसको अभी भी इम्प्लीमेंट करते तो सबसे बड़ा चैलेंज यही आएगा कि अगर देर इज dissolution of the house before the 5 years term, so how we are going to ensure कि we still continue with this system of simultaneous elections. और जो बेसिक आर्ग्यूमेंट्स हैं वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट कि एक हाई एक्सपेंडिचर एक्सरसाइज होगा एंड हाउ वी आर गोइंग टू इंश्योर कि द नंबर ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल दैट वुड बी रिक्वायर्ड उनको हम कैसे डिप्लॉय करेंगे. देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम, हम ईवीएम मशीन्स की बात करते हैं तो देयर लाइफ टाइम इज 15 years, सो इट मीन्स कि 15 years में दे विल बी यूज्ड ओनली 3 times, प्लस जो कॉस्ट है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द ईवीएम्स दैट इज कंपैरेटिवली हायर. सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम करेंगे सो दैट इज नॉट इन आवर फेवर. So 4 people have been killed, 50 injured in stampede amid the rain. So because of the rain, there was a stampede. So basically this is a Cochin University Fest. So यहाँ पे हम बात करते हैं कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में बहुत बड़े लेवल पे फेस्ट किए जाते हैं तो क्राउड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. So although we do not see basically adequate measures in place, so just because of rain, stampede हुआ and 4 students have lost their life. So 1,000 students crowd was present.
So proper number of exits होने चाहिए, and we can obviously take the help of technology like drone technology to so as to monitor. And it shouldn't be like a completely closed environment. Moving forward to the next important topic, then यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रीट आर्ट है क्या वो कॉपीराइट रूल्स के अंडर कवर्ड है. So this matter is sub judice. So here you can see one of the graffiti art जिसको हम बोल सकते हैं ST plus art, मतलब street art. And यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की गई हैं कि दे आर द होल्डर्स ऑफ द कॉपीराइट to the mural titled humanity. So this is one example. So हम इनको murals भी बोल सकते हैं. Murals are basically paintings done on a large surface of the wall using basically the vegetable paints, मतलब कि organic paints हम बोल सकते हैं. So this is one issue which is subjudized in Delhi High Court. So they have decided to examine this issue. सो लीगल चैलेंज हमने बात कर ली कि क्या ये कॉपीराइट के अंडर आएगा नहीं आएगा, एंड इट हैज listed the case for hearing. So the court has meanwhile directed the ACO to take down all the online content pertaining to these murals. मतलब obviously इन murals की आप picture लेके भी इसको apparel में convert कर सकते हो, इसको हम basically और digitally भी use कर सकते हैं. We take their pictures. So we need to ensure कि they are fairly used. And so this is basically the thing over here. So P for pluralism, Alphabet series showcases Karnataka's rich legacy of diversity. So letter from the Kannada alphabet has been chosen for each day of the month of November, and a quote that features the letter is presented on the Bahutva Karnataka social media channel. So every day a quote is shared. So यहाँ पे every child is born a universal human being. We make him or her a mean human being as he or she grows up. So this can also come up in the form of quotation. So the task of education is to make him or her a universal human being again. So what is going to be your interpretation of a universal human being? Karuna? आई थिंक जो कि मल्टी डायमेंशनली सोच पाए और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम कर पाए. हाँ, मतलब कि एज अ चाइल्ड ग्रोज अप हम रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने लग जाते हैं. कहीं ना कहीं हम अगेन यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर की भी हमने बात करी कि एजुकेशन सेक्टर का अगेन कैसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है टू मेक अ चाइल्ड एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग, टू थिंक फ्रीली, टू एक्चुअली बेसिकली चूज द प्रोफेशन ही और शी लाइक्स. एंड अगेन मेंटली भी जो प्रेशर आता है, सो दैट ऑल्सो समटाइम लीड्स into cases like suicide also. जब हम बात करते हैं इवन कोटा में भी बीन सीइंग की इंस्टेंसेस ऑफ सुसाइड्स गोइंग अप. इस चीज से हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे. एंड अगर आपको किसी को भी और कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट हाईलाइट करना है तो कैन गो अहेड. So values of the constitution such as fraternity, dignity, equality, which are thought of as a Western values, can be seen in our literature as well. So यहाँ पे हम बात कर सकते हैं the importance of morals and values also. And एवर सिंह की यहाँ पे कास्ट. आप इंडियन कल्चर का कोई एग्जांपल दे सकते हैं जो कि दैट इज वर्किंग टू मेक चाइल्ड अ यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग. किसका एग्जाम्पल करूँ ना, कैन यू रिपीट? जैसे इंडियन कल्चर की जो भी रिचुअल्स होते हैं ऐसा कुछ है जो इससे रिलेट कर सकते हैं हम. स्पेसिफिकली अभी तो मैं ऐसा कोई रिचुअल नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ. मतलब वो ये कि फ्रीली
वर्ड को ही ज्यादा हम एसोसिएट करेंगे इससे, तो उसमें वी कैन थिंक ऑफ कि कैसे कोई एलिमेंट फिट हो सकता है, नहीं हो सकता। So flight-like feel on the Vande Bharat train soon. So we're working upon the quality infrastructure जब हम railways की बात करते हैं, and you'll be having greater choice in food and beverages as well as the sale of essentials. So we were talking about key railways, basically they are suffering losses. So because of that also they are trying and they are emphasizing more कि जो high end trains हैं उनका number भी हम increase करें, so that basically they are able to make up for their losses और जो extra expenditure उनको करना पड़ रहा है. So world class standards would be there available, and these are obviously indigenous trains जो हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. So exclusive food menus would be there. So these are we can say कि कुछ ऐसे factors हैं which would act as attraction for the people. So Yatri Seva Anubhav as a pilot project in Southern Railway covering 6 pairs of Vande Bharat Express trains would be launched. So what is Kamla? You're seeing ki Kamla is underway at the Palace Grounds in Bengaluru. So this is basically like we have Jallikattu in Tamil Nadu. So this is first ever 2-day event of Kamla, which is a slush track buffalo race, which happens in Karnataka. सो दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज. सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जो इशू था स्पेसिफिकली जल्लीकट्टू, दैट मैटर वाज टेकन टू अगेन सुप्रीम कोर्ट आल्सो. सो ये एक ट्रेडिशनल फोक स्पोर्ट है which is born of the agrarian practices of the coastal Karnataka region. So the word Kambala, it comes from the Gampa Kala, where Gampa refers to wet mud or slush. So a vast slushy paddy field was called as Kamblagad. Mansi, your voice is breaking. Okay, this is because I'm using my mobile phone data. तो अभी यही यूज करना पड़ेगा, वाईफाई में नहीं यूज कर सकती बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कट हो सकता है, तो फिर वो वीडियो पूरी बीच में रुक जाएगी. सो वील हैव टू मैनेज. सो दिस कैन बी साइडेड एज वन ऑफ द एग्जांपल्स. जब हम जल्लीकट्टू की बात करते हैं, यहाँ पे हम डिबेट की बात करते हैं कि ये एनिमल क्रूएलिटी वर्सेस द सेफ्टी ऑफ ट्रेडिशनल और कल्चरल प्रैक्टिस. सो तमिलनाडु का स्टैंड जल्लीकट्टू के केस में यही था कि ये हमारी एज ओल्ड एक कल्चरल एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो हम completely बैन नहीं कर सकते. सो आफ्टर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दे बेसिकली अमेंडेड देयर ओन स्टेट लॉ, बट इन द एंड दैट वाज अपहेल्ड. सो किस तरीके से आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो उस इवेंट को, यूर इंश्योरिंग कि उस इवेंट में सेलिब्रेशन के दौरान एनिमल्स को क्रूएलिटी के थ्रू ट्रीट नहीं किया जा रहा है. प्लस obviously safety of human beings, that is also taken care of. So one example of Tamil Nadu defense corridor की जब हम बात करते हैं, तो अभी भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? Am I audible? Achal Karuna? Yes, Mansi, your voice and screens both are not working properly. या अभी और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? बिकॉज मैं फोन का डेटा यूज कर रही हूँ लैपटॉप में, तो वाईफाई यूज नहीं कर सकते अभी. चलो कोई नहीं, आप करो कंटिन्यू. तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर की हम बात कर रहे थे, तो जॉइंट वेंचर का एक एग्जांपल है. इंडियन और इटालियन फर्म्स दे आर कमिंग अप विद अ जॉइंट वेंचर. तो जॉइंट वेंचर में बेसिकली इटालियन फर्म के थ्रू जो इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा उससे हमें बेनिफिट होगा, एंड प्लस दिस इज इन डिफेंस कॉरिडोर. सो अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो वी विल बी हैविंग इट इन अ लिमिटेड मैनर.
So the strategic joint venture is aimed at tapping the growing market of India while developing design expertise and transferring the manufacturing know-how to India. So this is what I emphasize, technology transfer पे हमारा focus रहता है. So that is why it is joint in nature. So people of Ladakh are demanding democracy. Democracy in the sense they want statehood to be restored to the Union Territory of Ladakh. So with the abolition, abrogation of Article 370, we saw कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को सेपरेट यूनियन टेरिटरीज क्रिएट कर दिया गया था. एंड वन ऑफ द डिमांड इज इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल. जो ट्राइबल एरियाज हैं दे आर डिमांडिंग कि उनको 6th शेड्यूल के अंडर लेके आना इंपॉर्टेंट है. दे आर डिमांडिंग रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट. So Kargil Democratic Alliance, and this is the apex body in the Leh region. तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि अगर गवर्नर जो स्टेट असेंबली बिल उनको भेजते हैं, अगर गवर्नर उसको रिजेक्ट कर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि द बिल डाइज. सो द स्टेट असेंबली कैन अगेन सेंड दैट बिल, उसको फिर से चेंजेस करके सेम फॉर्म में फिर से गवर्नर के पास भेज सकते हैं वो लोग. सो इसका मतलब ये नहीं कि उस बिल को फिर से वी कांट वर्क अपॉन दैट पर्टिकुलर बिल. सो गवर्नर इज अंडर आर्टिकल 168 which is a part of the legislature, and obviously governor is a part of the state legislature and is bound by constitutional regime. So we've talked about upholding the constitutional morality is very important. The governor does not have any kind of veto power in this case as far as giving or not giving assent to the state assembly bills is concerned. So Article 200, 163, Article 168 की आज हमने बात करी है. So Article 200 goes on to say that the governor may send the withheld bill if it is not a money bill. So money bill के केस में गवर्नर के पास पावर नहीं होती कि उसको आप वापस से रीसेंड कर सकते हो. So ordinary bills can be sent back by the governor of the state. So the final word belongs to the legislature and not the governor. So ये जो कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे थोड़ी एम्बिग्युटी एग्जिस्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट इज बेसिकली क्लियरिंग दैट सो दैट जो डेडलॉक है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स के बीच में हमने देखने को मिल रहा है कि तमिलनाडु स्टेट में, केरला में एंड इवन इन पंजाब सच इंस्टेंसेस आर कमिंग अप. Oshik, So am I now clearly audible? Am I audible now? हाँ आप आ रही है आपकी बात. ठीक है. So Army finalizes ammunition requirement for 10 years and banks on indigenous manufacturing. So self-reliance पे focus कर रहे हैं, indigenous manufacturing पे हमारा ज़्यादा focus है as far as the defense preparedness is concerned. And we are again planning perspective से बात करें तो ammunition requirement and their availability 10 साल के मतलब 10 साल के टाइम पीरियड के लिए हमारे पास इतने एमिनेशंस होना चाहिए. सो वी आर इंश्योरिंग ऑन दैट ऑल्सो, गिवन वी आर सीइंग कि ग्लोबली जियोपॉलिटिकल जो वॉर्स चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकली थिंग्स आर गेटिंग रीऑर्डर्ड. सो लाइक रशिया यूक्रेन वॉर है एंड लद्दाख स्टैंड ऑफ की अगर हम चाइना से कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, incursions we have been seeing even in the Doklam Valley also and in eastern Ladakh. So clear roadmap is in place for ammunition procurement and कितना हमें requirement होगा for the next 10 years given the security challenges that we are having when we talk about the possibility of a two front war, and accordingly जो हमारा defense expenditure है कितना हमें वो करना पड़ेगा, so that would be accordingly decided. So we are basically working upon the preparedness level as well.
एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंडिजिनाइजेशन पे भी हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. सो जो ऑलरेडी हमारा And 80% एमिनेशन रिक्वायरमेंट है, इट हैज़ बीन इंडिजिनाइज्ड. सो दिस वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के साथ. तो औशिक क्या कह रहे थे आप? मैं बोल रहा था कि presently if ammunition is the requirement is fulfilled from both public and private sector, तो पब्लिक सेक्टर में हम लोग ओएफवी का बात करते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड. तो प्रवेश, इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है क्या, और उसमें कुछ अभी रिफॉर्म हुआ है क्या? मेरी आवाज आ रही है उसे? हाँ, आवाज आ रही है आपकी. ठीक है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो होता है ना, वो बेसिकली जो ऑर्डिनेंस आपकी फैक्ट्रीज होती है जहाँ पर आपका आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है और जो लॉजिस्टिक है सारा वो रखा जाता है, उस बेसिकली उन जितने भी इंडिया के अंदर ऐसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आर्मी की, उनका एक बोर्ड होता है जिसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहा जाता है. और बेसिकली इसमें अभी एक रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ है कि इसमें जो है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसका हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे. तो ये दो चीजें हैं. प्रवेश, तो वो बात था, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन पता है, लेकिन क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं पूछ रहा था. Now, Ashik, you can mention. आई थिंक ये जो बोर्ड है ना, ये मतलब ये बोर्ड ही खत्म कर दिया गया है. हाँ, मैं ट्रांसफॉर्म किया गया बाय ओएफ इनटू मोर गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेट एंटिटीज. कॉर्पोरेट बना दिया गया उसको अभी भी, लेकिन ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, प्राइवेटाइज नहीं किया गया. ठीक है. ठीक है. पहले क्या था ना, और फैक्ट्री बोर्ड था डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे ओएनजीसी का, ओएनजीसी एनटीपीसी है ना, वैसी टाइप बनाया गया उसको नहीं, अलग इसमें से. बेसिकली ये कौन? हुआ है ना कि जो ऑर्डिनेंस के अंदर हर तरीके का सामान होता था, तो एक ही बोर्ड उस सारी सामान का लॉजिस्टिक इंश्योर करता था. लेकिन अभी ऐसा है कि अगर एडवांस वेपन है तो उसके लिए अलग एजेंसी को दे दिया है. उसके बाद अगर व्हीकल्स हैं आर्मी के हाँ. तो उनके लिए अलग दे दिया है. और अगर जो मिसाइल्स हैं उनके लिए अलग दे दिया है. तो स्पेशलाइजेशन कर दिया है. हाँ, सही बात है. और उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में. तो येलो कौशिक, रेवोल्यूशन. मैंने क्वेश्चन पूछा था, मानसी ने तो शायद बताया नहीं. आप बताओ कि जो गवर्नर है इंडिया के अंदर, क्या वो उनके पास पॉकेट वीटो है? नहीं. किसके पास है इंडिया में पॉकेट वीटो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्या होती है पॉकेट वीटो, आप मुझे बताओ. ये भूल जाना, मतलब ऐसे नहीं, ठीक है, मतलब ऐसे में कि उसको असाइन नहीं करना और रख छोड़ देना वैसे ही, बिल हाँ, को. मतलब बिल को अपने पास तो रख अगर दो. मैं हिंदी में समझता हूँ, उसको पॉकेट में डाल के छोड़ देना, मैं हम्म, सोचता हूँ दिमाग में. वैसे ही मैंने याद किया ठीक है. इसको. बिल हाँ ठीक है. अपने पास ही रखते हो ना, तो आप उसको वापस रीसेंड कर रहे हो ना हाँ. सेंड. हाँ. सस्पेंसिव पॉकेट, बाकी कुछ कुछ वीटो होता है तो. ठीक तो है. इंडिया टर्म. के पास, प्रेसिडेंट के पास एक ही वीटो नहीं है. प्रवेश, आप बताओ. यूएस के प्रेसिडेंट के पास है, क्वालिफाइड है शायद वीटो. हाँ, हमारे नाम. पास क्वालिफाइड नहीं है, हमारे पास एब्सोल्यूट है, सस्पेंसिव है और पॉकेट है. तीन तरीके की हमारे पास है. एब्सोल्यूट हाँ. वो वाली नहीं है. सबका. हाँ, क्वालिफाइड मतलब होता है कि आप लौटा दो. तो अगर वहाँ के जो कांग्रेस है ना, मतलब प्रेसिडेंट अगर वो लौटाते हैं यूएस में, तो कांग्रेस वहाँ पे 3/4 मेजोरिटी से अगर बिल को वापस से पास करें तो उनको साइन करना ही पड़ेगा. वो क्वालिफाइड वीटो हो गया. इंडिया हाँ, में और ऐसा नहीं. सस्पेंसिव वीटो का मतलब ये होता है कि इसमें सिंपल मेजोरिटी से भी अगर दोबारा रिकंसिडर करके बिल आता है तो बेसिकली हाँ. प्रेसिडेंट को साइन करके देना पड़ता है. नहीं, उसमें भी नहीं है शायद ये. साइन करके देना किसमें? नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है वो. नहीं नहीं नहीं, अगर प्रेसिडेंट को, अगर आप प्रेसिडेंट ने यही बोला कि आप रिकंसिडर करके दो, तो आपको हाँ. प्रेसिडेंट को साइन नहीं करना पड़ेगा, फिर मना नहीं कर सकते आप. टाइम में करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, मैं देखता हूँ टर्मरिक उसको. कोड की हम बात कर सकते हैं. तो टर्मरिक बेसिकली वी कैन से कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक टर्म भी यूज करना है तो येलो रेवोल्यूशन यूज कर सकते हैं. सो वी सी कि टर्मरिक कल्टिवेशन तेलंगाना में की जाती है. एंड टर्मरिक बोर्ड सेट टू बी अ रियलिटी, नो येलो टूरिस्ट दिस टाइम. सो टर्मरिक स्पाइस्ड अप 2000, मतलब असेंबली इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में दिस इज न्यू. सो formation of the board has been announced by the prime minister. सो टर्मरिक की अगर हम बात करें, फर्स्ट वी कैन लुक फॉर अगेन कि कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस इंपॉर्टेंट है विच आर सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टर्मरिक. टर्मरिक बेसिकली हल्दी होती है. एंड we talk about the demand. So farmers, they are demanding progressive methods
to basically increase their incomes. So इससे तो थोड़ा जो टर्मरिक होता है उसका बनाना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इंडिया के अंदर है आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और उड़ीसा, कर्नाटका, और गुजरात और केरला। तो बेसिकली टर्मरिक जो है वो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में उगती है। और बेसिकली ये रूट्स होते हैं इसके, जो टर्मरिक सप्लाई होती है। और अगर हम बात करें कि वर्ल्ड के अंदर कौन सा है, मतलब कहाँ से जाती है सबसे ज्यादा, तो बेसिकली इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। और जो टॉप मोस्ट क्वालिटी उगाई जाती है वो बेसिकली मेघालय स्टेट के अंदर उगाई जाती है टर्मरिक की, जिसको लाका डोंग टर्मरिक बोलते हैं। ठीक है, मैं इसमें दो ऐड करूंगा कि ऐसा कौन सा केमिकल है जो टर्मरिक पाया जाता है जो बॉडी के लिए हेल्थी है एक तरह से। तो क्यूरक्यूमिन है। क्यूरक्यूमिन जो एक केमिकल है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लड क्लॉट्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसलिए इसको फेमस है टर्मरिक उसके लिए। दूसरा चीज, और टर्मरिक इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट है एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। स्टैट्यूटरी बॉडी तीन है: टी बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर कॉफी बोर्ड है, और उसके साथ एक बोर्ड है। बोले प्रवेश, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं हाँ, सर्च मैं बोल करता रहा हूँ। था कि जो टर्मरिक बोर्ड है वो बेसिकली जैसा कि आपने बताया कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। और दूसरा ये है कि जो टर्मरिक है वो जो हमारा जो मेडिकल है, मतलब जो आयुर्वेद है, उसके उसका एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, मतलब उसको प्रमोट करती है। और बस ये दो चीजें मैं बोलूंगा अभी। Anti-inflammatory होती है, हाँ, it helps in fighting infections in the body. इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट तेलंगाना है कि आंध्र प्रदेश है? इट इज आंध्रा, आई थिंक। वो पुराने वाले डाटा के हिसाब से हो सकता है, तो आई थिंक आंध्रा है, क्योंकि लार्जेस्ट रीजन भी आंध्रा का है, तो मेन ज्यादा। बात क्वेश्चन ये है मेंस के हिसाब से प्रवेश, कि हम्म। बोर्ड क्यों बनाया जाता है बेसिकली, अगर क्वेश्चन रहेगा। ये तो हम लोग क्या बात कर चीज? लिए प्रीलिम So that स्पेसिफिक यहाँ पे, हाँ, बोर्ड, प्राइसेस, कॉटन बोर्ड। प्राइसेस हम रेगुलेट कर सके, हाँ, जो इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स है वो वॉयलेट ना हो, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल तरीके से जो पूरी इंडस्ट्री है, मार्केट है, वो फंक्शन कर पाए। तो मतलब और रेगुलेशन के दूसरा एक और के कि जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ जो फाइटो सैनिटरी मेजर्स होते हैं ना उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा जीआई टैग दे सकते हैं, जैसे टर्मरिक दिया जाता है, उड़ीसा में टर्मरिक टर्मरिक है, और बाकी जगह पे, तो ठीक है। इसके लिए इसके बोर्ड। अलावा, इसके अलावा मैं एक चीज बोल देता हूँ कि बेसिकली जो इस तरीके के बोर्ड बनते हैं, तो डाटा कलेक्शन में अच्छा, मतलब डाटा कलेक्शन अच्छा होता है। दूसरा, जो इनकी रिपोर्ट्स होती हैं वो एनुअली जो गवर्नमेंट्स और मिनिस्ट्रीज होती हैं वहां पर पेश होती हैं। तो बेसिकली एक क्रेडेंशियल्स सरकार के पास रहता है कि कितना इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट है, उसके बाद कितना फार्मर्स को असिस्टेंट है, कितने लोग उगा रहे हैं, और किस तरीके से रिवेन्यू जनरेशन बढ़ सकता है। और जो भी कमियां हैं मतलब टर्मरिक प्रोडक्शन में, उसके लिए बेसिकली जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो टाइमली स्टेप्स या पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। तो काफी चीजें बोर्ड से हेल्प मिलती है, जो आपने बताया दैट इज आल्सो मोस्ट ऑफ द ठीक। इम्पोर्टेंट कोजेस बिहाइंड। ठीक, मानसी क्या कहते हैं? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। यहाँ पे हमें डेटा ड्रिवन एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग अप्रोच देखने को मिल रही है व्हेन वी टॉक अबाउट स्मार्ट सिटीज क्रिएशन। और वी वर बेसिकली यस्टरडे टॉकिंग अबाउट की स्पन सिटीज भी है थॉटफुल सिटीज क्रिएशन के लिए। सो डेटा प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। सो नेम इज ऑफ दिस इनिशिएटिव इज एम्पलीफाई 2.0. So it stands for Assessment and Monitoring Platform of the Livable, Inclusive and Future Ready Urban India. So around 150 civic bodies ऐसी हैं जो अपना डेटा शेयर कर रही है। So डेटा किस चीज के बारे में हम कलेक्ट कर रहे हैं और वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है। So टोटल कंजम्पशन कितना हो रहा है सिटीज में, so as to again मेक आउट कि वहाँ पे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना हो सकता है, या फिर फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अकॉर्डिंगली वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज एंड कैपेसिटी क्रिएशन भी उन सिटीज में on the basis of the consumption and expenditure हम create कर सकते हैं. Then number of samples has been tested for again water quality also, so that can be also looked into. अगर हम exactly पता होगा water quality कैसी है, how has been the trend water quality में, whether it is deteriorating, what are the factors, उसके पीछे हम वो जान सकते हैं. Then expenditure कितना हो रहा है health care पे, so this we can make out basically अगर हम बात करें कि insurance policies पे कितना expenditure होता है, how much population is covered, so that can also give us a fair idea.
एंड नंबर ऑफ स्लम डवेलर्स कितने हैं किसी पर्टिकुलर सिटी में, बिकॉज अगेन यहाँ पे नंबर बहुत ज्यादा वेरी करता है. सो कितने स्लम डवेलर्स हैं, उनकी ह्यूमन मतलब हैबिटेशन के लिए या फिर रिहैब के लिए हम कौन से एरियाज को डेवलप कर सकते हैं. एंड देन रोड एक्सीडेंट फेटालिटीज का डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है. सो एज टू अगेन नो कि कितने रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कॉज है एंड क्या रिफॉर्मेटरी स्टेप्स हम ले सकते हैं. तो अर्बन आउटलुक्स फ्रेमवर्क 2022 it has been developed for the Ministry of the National Institute of Urban Affairs and PwC India. So focus has been shifting from indices to the data with the comprehensive list of indicators. So indices एक हम बोल सकते हैं कि इतना बड़े स्केल पे डेटा कलेक्ट करके हमें एक बड़ी पिक्चर नहीं क्लियरली समझ में आती है थ्रू एन इंडेक्स. वो एक छोटा इंडिकेटर है, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिगर डेटा सेट. सो अब थोड़ा हम डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड डेमोग्राफी चेंजेस भी हम डेफिनेटली जान सकते हैं अच्छे से. एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आई ऑलरेडी मेंशन्ड. सो डेटा की हम बात करें, सो बाय 2030 अगर हम इंडिया में अर्बनाइजेशन की बात करें तो इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू हैव 60 करोड़, मतलब कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द urban areas compared with 37 crore. So right now 31% of India lives in urban areas. So this is as per 2011 census. And urban India का अगर हम contribution to GDP बात करें तो it contributes 63% to our GDP. And this would be increasing up till 75%. So this is again showing कि एक handful of the population या सिर्फ हमारी 30% population 63% GDP में contribute कर रही है. So even this is an indicator of economic inequality. So ये show करता है कि agriculture sector में हम productivity की बात करते हैं, low per capita income की बात करते हैं, disguised unemployment की बात करते हैं. So that is why we talk about that structural shift is very important. We need to ensure the agricultural farmers, they move from agriculture to the industrial and the services sector and the manufacturing sector. प्रवेश, यहाँ पर जो तेजस एयरक्राफ्ट है ना, तो इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तेजस में क्यों गए? प्रवेश बताएंगे. नहीं, बाकी बेसिकली सभी ये तो इंडिजिनस है ना, ये हमारा जो हिंदुस्तान कौन बनाया एरोनॉटिक्स इसको? लिमिटेड, हाँ, हिंदुस्तान ठीक. एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसने बनाया हुआ है ना. ठीक. गोल्डन एरो है जो स्क्वाड्रन है, वो अंबाला एयरपोर्ट में है शायद, इसी इसको ले आते थे. ठीक है. इंडिजिनस है, पहला इंडिजिनस है. पहला इंडिजिनस नहीं है प्रवेश, मारुत हाँ, था पहला नहीं. पहला. सेकंड HAF मारुत, पहला इंडिजिनस 70s 80s से बना था वो. ये सेकंड है. कंटिन्यू. ओके. सो ड्रोन अटैक देखने को मिल रहा है काय में, यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन वॉर की हम बात करें. सो दिस इज अगेन मॉडर्न मेथडोलॉजी ऑफ अटैकिंग, मॉडर्न वॉरफेयर की हम बात कर सकते हैं. So again, this is being made possible because of the technological advancements and plus given their unethical usages. यहाँ पे भी ईरान ड्रोन अटैक. So drone attacks you are seeing. तो म्यांमार से चाइना और इंडिया के अलावा ऐसी कौन सी कंट्री जिसका बॉर्डर हटा है? क्या बोल रहे कौन हो सी? आपका क्वेश्चन? मैं बोल रहा हूँ कि म्यांमार से चाइना और इंडिया के अलावा कौन सी ऐसी कंट्री जिसका बॉर्डर और लगता है म्यांमार से? अच्छा, म्यांमार से लाओस, इंटरनेशनल कंट्री? थाईलैंड, हाँ, थाईलैंड है, चाइना हो और गया. कोई? लाओस, लाओस. हाँ, ठीक. ठीक है. So Antarctica's ozone hole expands mid-spring since 2001. So ozone reduction के लिए we are having the Montreal Protocol. It is a designated a list of controlled ozone depleting substances. So these were banned from future production in 1987. And इसको माना जाता है कि इस प्रोटोकॉल it has been successful for ozone recovery. So अगर हम यहाँ बात करें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के, अगर हम एग्जांपल देखें, so can you mention कौन से एग्जांपल्स है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के? ग्रीन हाउस गैसेस. हाँ, और बताओ. CFC पहला होगा, सेकंड में ग्रीन हाउस गैसेस से बाहर. हम्म. जो फ्लोराइड क्लोराइड जो यूज होता है ना,
वो उससे होते वो हैं, होता है CFC, पेंटाफिन। HFC, HBFC, हेलोन्स, ये सारे होते हैं ना। हाँ, SF6 ऐसे करके पूरा। सो CFC की पोटेंशियल की अगर हम बात करें और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की पोटेंशियल की बात करें, तो कौन ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखता है इन डिप्लीशन? किसकी पोटेंशियल ज्यादा है?